क्योंकि अज मीटिंग एकदम ही बनी सवेर तो मेयर साहब अपना हाउस चला रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ SS ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ HS ਲੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤਰਨਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗੇਸ਼ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤਰਨਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਫਿਰ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਾਊਸ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ 8 ਸਾਲ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਨਗ੍ਰੇਵ ਕਰਨਗੇ। मेयर साहब कुलदीप कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का एक हमारे छोटे से सद्दे पे आप सभी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम। जैसा कि हमारे डॉक्टर अनूवालिया ने बताया कि आज जिस तरह से हाउस था, पहले तो बीजेपी जो है हाउस को चलने नहीं देना चाहती थी। FNCC के इलेक्शन भी बड़े लेट करवाए गए। उसके बाद सर एक उनका जो साथी है जसवंतप्रीत जी अपना जो है नामांकन वापस ले लेता है। सर्वसम्मति से हमारे 5 FNCC के फिर बंदे चुने जाते हैं। वो आप सभी ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने हाउस को मतलब जो उसकी प्रक्रिया है उसे ख़राब करने के लिए हर हथकंडे अपनाए, लेकिन बावजूद इसके सर्वसम्मति से जो एजेंडे आए, जैसे 20,000 लीटर पानी का और फ्री पार्किंग का जो एजेंडा आया, टेबल एजेंडा, वो सर्वसम्मति से पास हुआ और उसमें चंडीगढ़ की जो जनता है उसके जनहित को देखते हुए वो एजेंडा पास किया गया है। और मैं गुजारिश करूंगा कि आगे भी जो इसे हम लोकल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को भेजेंगे, उसके बाद एडवाइज़र साहब और गवर्नर साहब के पास जाएगा, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि चंडीगढ़ की भलाई के लिए ये वो भी अप्रूवल दें और ये चंडीगढ़ की भलाई के लिए आगे काम करेंगे हम, और हम सब मिलकर चंडीगढ़ को दोबारा से सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा दिलाएंगे और नंबर 1 लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की जी।
सभी साथियों को नमस्कार। मेहता जी, सभी साथियों को नमस्कार। मेरे से पहले बोलते हुए डॉक्टर सनी आलूवालिया जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं चंडीगढ़ के, और चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक मेयर कुलदीप जी ने आज के हाउस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया। आप सभी को ज्ञात होगा कि हम सब ने जो इंडिया अलायंस बनाया था चंडीगढ़ के अंदर, खास तौर पर जो हमारा आपस के अंदर अलायंस बना था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उससे सबसे पहले मकसद था मेयरल चुनाव। और उसके अंदर आपने देखा कि हमने पूरी लड़ाई लड़ी और 30 तारीख को अगर चुनाव के रिजल्ट हो जाते तो तीनों पोस्ट हम मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जीतते। खैर, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेयर बनकर आना चंडीगढ़ के इतिहास में, मैं समझता हूँ पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कुलदीप जी मेयर बनकर आए। उसके बाद मकसद जो हमारा था शुरू से यही था कि चंडीगढ़ के लोगों की भलाई की जाए, उनके लिए अच्छा काम किया जाए, उनके लिए अच्छे एजेंडास लेके आया जाए। तो इंडिया अलायंस की कल एक प्री हाउस मीटिंग भी हुई थी और उससे पहले भी हमारी पार्टीज के विभिन्न मुद्दे थे। जैसे आम आदमी पार्टी फ्री पानी का इनका मुद्दा था, हमारा फ्री पार्किंग का मुद्दा था। तो हमने जब एक अलायंस बना लिया तो हमने आपस में फैसला किया कि क्यों ना अब समय आ गया कि उन मुद्दों को सही रूप में क्रियान्वित करने का, कि उनको सही शेप देने का, सही पोजीशन पे लाके उनको पास करने का। उस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए आज हाउस की मीटिंग हुई और हाउस की मीटिंग में सुबह से ही आप देख सकते थे किस तरह से बीजेपी डिसरप्ट करने की पूरी प्रोसीडिंग को कोशिश कर रही थी। आज भी वो एक चुनाव चालना चाहते हैं, एक छोटा सा एफएनसीसी का चुनाव। मेयर को हम छोटा चुनाव कह रहे थे, एफएनसीसी का तो सोचिए कितना छोटा चुनाव है। उस चुनाव को भी टालने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की, 2 घंटे हाउस को भटकाते रहे, अफसरों की बात नहीं सुन रहे थे, किस तरीके से फिर गुंडागर्दी का माहौल बना रखा था वहां पूरा सदन के अंदर। और उसके बाद भी जब सफल नहीं हुए और मजबूरी में एंड में उनको अपना एक हार दिखी, जब तो हार जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं होती। आज तो टिक लगा नहीं सकते थे क्योंकि जो सीट पर बैठे हुए थे वो एक ईमानदार व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्होंने जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी हुआ उसमें पूरी ईमानदारी दिखाई और हमारी एक वोट को इनवैलिड डिक्लेयर किया। इससे बड़ी ईमानदारी क्या हो सकती है। हाल ही का छोटा सा इंप्रेशन था, इग्नोर कर सकते थे, पर नहीं, सच्चाई पे खड़े रहे और आज भी उसी सच्चाई पे खड़े रहे और उनको घुटने टेकने पड़े, उनको पीठ दिखानी पड़ी और उनके कैंडिडेट को विड्रॉ करना पड़ा। और हमारे 3 कैंडिडेट जो हैं इंडिया अलायंस के, वो चुनाव जीते और ये बड़ी जीत, एक फिर बड़ी जीत चंडीगढ़ के अंदर हुई है मेयर के चुनाव के बाद। और उससे बड़ी जीत आज जनता की हुई है, जब इतने बड़े 2 एजेंडास, 20,000 लीटर फ्री पानी और फ्री पार्किंग 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सभी के लिए। और पहले वाले मेयर साहब ने क्या किया था कि जो बाहर से व्हीकल आएंगे उन्हें डबल पार्किंग फीस लगेगी। फर्क देख सकते हो आप उनकी सोच में और हमारी सोच में, उनके इलेक्शन कंडक्ट कराने के तरीके में और हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराने के तरीके में, उनकी बदनीयती और हमारी नेक नीयती में, उनकी बेईमानी और हमारी ईमानदारी में। ये सारी चीजें आपके समक्ष हैं। तो मैं आज चंडीगढ़ की जनता को जहां बधाई देना चाहता हूं कि ऐतिहासिक फैसला मेयर और हमारे दोनों इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स, कांग्रेस के काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उनके लिए बधाई के पात्र है। और खास तौर पर चंडीगढ़ की जनता बड़ी बधाई की पात्र है कि जिन्हें इतनी बड़ी सौगात मिलेगी। हम इस मंच से चंडीगढ़ प्रशासन को अपील करना चाहते हैं कि हम आपको मैनेज करके देंगे, हम आपको फ्री पार्किंग भी मैनेज करके देंगे, हम आपको फ्री पानी भी मैनेज करके देंगे। अगर बागडोर जनता ने हमारे हाथ में सौंपी है तो आप भी हम पे विश्वास करें। हमारे एजेंडास को रिजेक्ट मत कीजिएगा, हमारे एजेंडास को नीचे लगाने की कोशिश मत कीजिएगा भाजपा के बहकावे में, क्योंकि ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का लाया हुआ एजेंडा है, नेक नीति और ईमानदारी से लाया हुआ एजेंडा है। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा योगेश ढींगरा जी, जिन्होंने पानी का आज बिल टेबल के ऊपर रखा था, ये भी इसके ऊपर 2 शब्द कर लेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे सीनियर लीडर है और मेयर साहब, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ और जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पहुँचे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो 2.25 साल पहले चंडीगढ़ में आए थे और एक जनता के साथ वादा करके गए थे कि जैसे ही हमारा, अगर आप आम आदमी पार्टी का मेयर बनाते हैं तो आपको एजेंडास देंगे, जिसमें 20,000 लीटर पानी और पार्किंग भी थी। और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है, आज हमारे साथ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ खड़ी है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सबसे पहले लोगों का सोचती है।
आपने देखा पिछले 8 सालों से किस तरह बीजेपी ने टैक्स पे टैक्स लगा के लोगों को जितनी मूलभूत सुविधाएं थी उनसे भी वंचित कर दिया। इस टाइम का दौर ऐसे आ गया है, लोगों के पानी के बिल बेताशा आ रहे थे, 5-5, 6-6 हज़ार कॉलोनीज के बिल आ रहे हैं, उनको पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेयर साहब का भी, इन्होंने आज अपनी पहली सदन की मीटिंग में ये एजेंडा लाके ये शो कर दिया है कि चंडीगढ़ में अब हिस्ट्री बनने जा रही है। अब लोगों के काम होंगे यहाँ पर। ये पर्सनल एजेंडा जो बीजेपी लेके आती रही है वो गंदी राजनीति अब यहाँ पे नहीं होगी, साफ सुथरी राजनीति यहाँ पे होगी। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरना मेहता जी, जो एफएनसीसी कि का चुनाव भी जीती है, पार्किंग के जो एजेंडा थे वो उनका टेबल एजेंडा इन्होंने लाया था। मैडम, सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सीनियर लीडर्स का, मेयर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इनकी अगुवाई में आज हम लोग जो पार्किंग का एजेंडा लेकर आए थे उसको सर्वसहमति से पास कर दिया गया। पार्किंग का एजेंडा, हम पार्किंग एजेंडे पास करने से जो शहर वासियों को राहत मिलेगी उसका जो श्रेय है वो हम सब हमारे जो अलायंस के साथी हैं उन सबको जाता है और मेयर साहब को जाता है। हम लोग शहर को जो है वो हम लोग राहत देना चाहते हैं। हम शहर का नुकसान नहीं करते, हम ये भी नहीं चाहते कि कॉरपोरेशन को रेवेन्यू लॉस हो, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं और सारे जो टैक्स है वो हम लोग सारा टैक्स जो है वो जनता पर इम्पोज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि हम लोग अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और लोगों को राहत भी दे सकते हैं। आज जिस तरह से मैंने हाउस में बात की, अगर हम बात करें रेवेन्यू इकट्ठा करने की कि हमें रेवेन्यू लॉस ना हो, तो मैंने आज बात करी कि व्यापार मंडल है, MWs है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंक हैं, जिनके जरिए जिनसे अगर हम अप्रोच करेंगे, वो इसको रन करें, वो इसको चलाएं, वो अपनी एड लगाकर जो रेवेन्यू है नगर निगम उसको जनरेट कर सकता है। जिस तरह से स्मार्ट, आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी है, वो यूनिपोल्स लगा रहा है, साइकिल को प्रमोट कर रहा है और यूनिपोल्स लगा रहा है और अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। क्यों ना सिमिलर लाइक जो नगर निगम है वो भी इसी तरह से इन कंपनियों को, ये कंपनियां उसको रन करें, इनको हम ऐड लगाने का हम इसको प्रोविजन लेकर आएंगे, वो ऐड लगा पाएंगे। उससे क्या होगा, ये कंपनियां हैं ये ऐड भी लगा पाएंगी और जो कॉर्पोरेशन है वो उसको भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो बहुत सारे, हम सिर्फ एक ही रास्ता क्यों चुनते हैं कि हम सारा टैक्स हम जनता से ही वसूली करें, सिर्फ जो रेवेन्यू है वो सिर्फ एक ही रास्ता देखें हम कि हम जनता से ही लूट लें। हम दूसरे रास्ते को क्यों नहीं चूज करते, दूसरे रास्ते को क्यों नहीं देखते। आप देखिए जो फाइनेंस कमीशन है वो भी ये बात कहता है, उसने भी ये बात कही है कि जो रोड टैक्स है वो नगर निगम को ही मिलना चाहिए। मैंने एक चीज और डिमांड रखी, जो RLA डिपार्टमेंट है वो कॉर्पोरेशन के अधीन होना चाहिए, क्योंकि जो RLA रजिस्ट्रेशन फीस है वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, जबकि जो गाड़ियां हैं वो कॉर्पोरेशन की सड़कों पर चलती हैं। पार्क है, वो पार्किंग कहाँ होती है, वो नगर निगम की पार्किंग पे पार्क होती है। तो जब सड़कें कॉर्पोरेशन बनाती है, रिकारपेटिंग कॉर्पोरेशन करती है, रिपेयर का काम हो वो कॉर्पोरेशन करती है, टाइल्स जो लगाई जाती है वो कॉर्पोरेशन करती है, हर तरह का जो काम है वो कॉर्पोरेशन करती है, तो रेवेन्यू कॉर्पोरेशन को क्यों नहीं मिल सकता। तो हम ये गवर्नर साहब से, मैंने मेयर साहब से हाउस में रिक्वेस्ट की कि मेयर साहब की तरफ से एक चिट्ठी जो है हम गवर्नर साहब को दें, हम सभी काउंसिलर्स पर साइन करेंगे, तो हम सब मिलकर गवर्नर साहब के आगे ये डिमांड रखेंगे कि वो हम जो RLA डिपार्टमेंट है वो हमारे नगर निगम के अधीन किया जाए, जिससे हमें रेवेन्यू हमारा और जनरेट हो सके, हमें हेल्प मिल सके, और जितने हमारे रुके हुए काम हैं जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि रेवेन्यू हमें नहीं आ रहा, जो हमें उन सब में हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਜਦ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ
passed by the House. So it will go to the governor for the. ਹਰਡਲਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੀਰੇਲ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹਰਡਲਸ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟੈਲ them ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਸਐਲਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे नज़दीक मेरा घर है वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के और जब से मैं हाउस में आया हूँ क्योंकि हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी भी जब इलेक्शन के दौरान आए थे उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ही डंपिंग ग्राउंड रखा था कि हम डंपिंग ग्राउंड का जो पहाड़ है वो ख़त्म करके रहेंगे और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग आज वो ख़त्म हो चुका है और जून तक पूरा वो ख़त्म हो जाएगा। आप विश्वास रखिए कि जून तक वो सारा ख़त्म होगा और आने वाले समय में वहाँ पर बहुत अच्छा ग्राउंड वगैरह आपको बच्चों खेलने के लिए जगह मिलती जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू जी थैंक यू।